Hi, good morning. Good Good morning. morning, everyone. ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So today we are at the end of our dream list and Good morning, ma'am. Good morning. लास्ट डे है हमारी ड्रीम्स के लिए हमको वर्क करने का. ऑफ कोर्स हम ये प्रैक्टिसेस रोज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द बुक दिस इज डे 22 वेयर आज के बाद से हमको अपनी लिस्ट अपने आंखों के ठीक सामने रखनी होगी, बिकॉज आज के चैप्टर का नाम है बिफोर योर वेरी आईज. सो व्हाट इज बिफोर योर वेरी आईज? ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड से भरी हुई हमारी ड्रीम लिस्ट. ठीक है, सो आज के बाद से इट सेज दैट अब हम अपनी पावर को यूज करेंगे अपनी बॉडी के आउटसाइड, अपनी लाइफ के आउटसाइड, दूसरों के लिए और ऐसी चीजों के लिए जो हमारे आसपास होती हैं. So till now we were just working on ourselves. So I'll just bring that chapter, which is called Before Your Very Eyes, अपनी नजरों के ठीक सामने. और इसमें जो इमेज है वो we'll just go through that. So इसमें वो जादूगर की कैप है, द मैजिशियंस हैट, और वो मैजिक वॉन्ड है जो जादूगर का होता है, और उसमें से वो एक्चुअली आब्राकाडाब्रा करके लाइक इसमें से रैबिट निकल रहा है. सो दैट्स व्हाट इट्स लाइक, सो हमारी भी ड्रीम लिस्ट इस तरीके से हम इसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं वेरी वेरी मैजिकली बाय द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड को बोलते ही मैजिक है, टैंजिबल है येट ये इनटैंजिबल है. कहते हैं ना मैजिक ओनली हैपेंस इन द इनविजिबल रेल्म. सो इसीलिए इसको जादू बोलते हैं. सो दैट्स हाउ आवर लिस्ट विल आल्सो गेट एक्चुअलाइज्ड हमारी जिंदगी में. सो वी विल जस्ट start reading it. Yes, Shivani, please read. After a Day long time. 20, yeah. Day 22, before your very eyes. Quote, this world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Unquote. Thomas Carlyle, writer and historian. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me
that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I've shared this story as an inspiration for you, because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you've never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire lists that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you've received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket.
on at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Thank you. Thank you. Thank you, Shivani, for reading. Everyone loves your beautiful voice, including me. Thank you. Thank you so much. So this is how our desires come true. So I think पहली बार रोंडा बर्न ने पूरी बुक में बताया है कि उनके अपने ड्रीम्स क्या थे, मतलब उन्होंने अपने टॉप 10 डिजायर्स में क्या लिखा था. So her number 1 desire was to bring joy to millions of people through her work. Okay, which of course she did not know because ये सीक्रेट मूवी बनाने के पहले के डिजायर्स है. उनको नहीं पता था कि पहले वो मूवी बनाएंगी, उसके बाद वो बुक लिखेंगी. So सीक्रेट मूवी बनाने के बाद she just took about 15 days and she finished writing the secret book. उसके बाद उन्होंने मैजिक लिखी. So she's constantly bringing joy to millions and millions of people. We here sitting in our different countries, different parts of the world, हम उनके क्रिएशन को अभी स्टडी कर रहे हैं जिसके वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है. So मतलब उनका जो नंबर 1 डिजायर था वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होता जा रहा है. इट्स नॉट दैट मतलब ये कब 2004 की बात है. And constantly she's been writing one book after the other, and she's just released her 6th book also recently, which I'm currently reading in the hard copy. And that's how her work is constantly thriving and flourishing and growing and progressing. And then like उनका ये था कि घर घर में उनके बुक्स पढ़ी जाएं so that they can change their lives, and that's happening today. ठीक है. फिर उनके पास मतलब जब उनकी ड्रीम लिस्ट में था, उनको $2 million का डेट था, उन्होंने कर्जा लिया हुआ था और उस पे उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई थी. तब उनके पास उनके स्टाफ को सैलरीज भी देने के पैसे नहीं थे, तो बहुत मुश्किल से शी वाज मेकिंग द एंड्स मीट. और तब उन्होंने लिखा था ये वाली सारी जो ड्रीम लिस्ट है, टू ओन अ ह्यूज हाउस बाय द ओशन. उनको कोई सी साइड व्यू का बहुत बड़ा घर चाहिए था, विच ऑफ कोर्स शी हैज टुडे. सो उनके जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट थे वो सारे उनके पूरे हो गए. और वो उनको टोटल मतलब फर्स्ट से लास्ट 10th डिजायर तक उनको 4 years लगे टोटल. तो कई बार होता है ना, टाइम लगता है हमको. लाइक उनका जो लास्ट डिजायर था उनकी ओरिजिनल लिस्ट में वो था टू गो टू बोरा बोरा. सो दिस इज लाइक अ फ्रेंच कॉलोनी और ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, मतलब टू गुड टू बिलीव. कभी आप इसकी इमेजेस देखना, दे लुक सो ब्यूटीफुल. सो शी हैड टू गो हियर. ये उनका 10th और लास्ट डिजायर था जो 4थे साल में 4th ईयर में ये पूरा हुआ था. एंड देन हर डिजायर के साथ उनको एक अलग हैप्पीनेस और सरप्राइजेस भी मिले हैं. जैसे जब ये जा रही थी बोरा बोरा तो इन्होंने बताया कि ड्रीम लिस्ट में था, तो इसमें इतना ग्रेटिट्यूड होता है ना, जो ड्रीम लिस्ट हमारी होती है, दैट बिकॉज ऑफ दैट जब वो चीज हमारे सामने आती है फिजिकलिटी में, सो इट हैज लाइक प्लस 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 ऑफ थिंग्स ऑल्सो. like in different ways कि आपको होटल अपग्रेड हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है. this is something that I experienced myself. जब आप बहुत ग्रेटिट्यूड लिखते हो अहेड ऑफ टाइम. आप सोचो उन्होंने 4 साल अपनी ड्रीम लिस्ट के लिए थैंक यू बोला था, जिस तरह वो हमको बता रही हैं, सिखा रही हैं. शी इज हैंड होल्डिंग अस फ्रॉम डे 1. उसके बाद इतना ग्रेटिट्यूड था. सो उन्होंने अपना बोरा बोरा का वो एक्सपीरियंस इसमें लिखा है कि जब वो फ्लाइट से आ रही थी तो वो सारे लोग इतने ज्यादा हैप्पी थे. छोटा सा प्लेन था, ठीक है, सारे लोग इतने खुश थे जो तहितियंस थे. तो उनको एक्चुअली बोरा बोरा कम्स इन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम कभी गूगल करेंगे ना, दैट 10 हैप्पीएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो उसमें सारा वो ओकिनावा आता है, जिसके बारे में हमने इकिगाई बुक में पढ़ा था. वी हैव ऑल रेड दैट बुक टुगेदर. जैसे हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस कर रहे हैं, उसके पहले हमने इकिगाई पढ़ी थी. तो उसमें ओकिनावा एक जगह है जापान में. तो इस तरह से 10 हैप्पी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं और बहुत लंबा जीते हैं. द लाइफ स्पैन इज लाइक रियली लॉन्ग. तो उनमें से एक ये बोरा बोरा भी है. तो उन्होंने जब वो प्लेन में चढ़ी तो उन्होंने कहा कि इतने अच्छे, इतने खुश लोग थे. दे वर हैप्पी टू बी देयर, दे हैप्पी टू बी अलाइव, दे वर हैप्पी टू बी टुगेदर, दे वर हैप्पी टू बी बोर्डिंग द फ्लाइट. मतलब हर चीज के लिए खुश थे वो. तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस फ्लाइट में ही बैठी रहूं, मैं कभी जाऊं नहीं, क्योंकि आई वाज एंजॉयिंग माय टाइम सो मच विद दीस पीपल कि मुझे इतना मजा आ रहा था इन लोगों के साथ बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ.
ओके सो और ऑफ कोर्स वो $2 मिलियन का डेट तो उनका बहुत ही आराम से पूरा हो गया था, बिकॉज सीक्रेट मूवी ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया था। और उसके बाद से आज तक इवन टुडे पीपल आर वाचिंग सीक्रेट, डोंट वी, वो यूट्यूब पे चली गई है, वो नेटफ्लिक्स पे है, सो कॉन्स्टेंटली पीपल आर वॉचिंग। तो इसमें इन्होंने अपना जो सीक्रेट बताया वो यही बताया है, बिकॉज कि वो अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा अपने पास रखती थी, पेपर पे लिख के, और अपने पर्स में, अपनी वॉलेट में रखती थी, एंड शी वुड एक्चुअली यूज इट। वन सेकेंड, आई विल जस्ट ब्रिंग दैट अप। सो दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। तो हमने अगर अपनी कंप्यूटराइज सॉफ्ट कॉपी में ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है या जैसे भी है, तो अगर आपको कैरी नहीं करना है, सो व्हाट आई डू, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो मैंने उसकी फोटो खींच के गैलरी में रख ली है ना। सो जब भी टाइम मिलता है, जब भी कभी अकेले होते हैं, जब भी अगर यू नो कार में बैठे होते हैं, someone else is driving, the driver is driving, so you can take out the dream list, अपनी जो गैलरी से देख लो आप उसको, or you can put it in your, मतलब अपने नोटपैड जो फोन पे होता है, फोन वाले नोटपैड में आप उसी में रख सकते हो, so that you can just open it और बार बार पढ़ के उसको खूब खुश फील करो, एज इफ ऑलरेडी हो चुकी है, और ढेर सारा ग्रेटिट्यूड दिल में भर के आप उसको पढ़ो। सो इस तरह से वो बहुत जल्दी रियलिटी में बदल जाएगी। सो ये थॉमस कार्लाइल का कोट है, दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस। सो जितने भी साइंटिफिक गुरुज थे, जिन्होंने सबसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, सबसे अच्छे किताबें लिखे, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन में बिलीव करते थे। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट चाहे कितनी भी साइंस हो, लाइफ इज स्टिल अ मिरेकल, इजंट इट? वी आर डिस्कवरिंग दैट बिट बाय बिट, वंडरफुल, इनस्क्रूटेबल, मैजिकल एंड मोर टू हूसोएवर विल थिंक ऑफ इट। जितना हम सोचे, एक्चुअली जादू इस दुनिया में है, देयर इज सम काइंड ऑफ एन इनविजिबल पावर जो हमको होल्ड करती है। ठीक है, उस पावर को अपना दोस्त बना लो तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो कितना भी साइंटिफिक हो, एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, ये सब इसी में बिलीव करते थे, है ना। जो एप्पल के ओनर थे, वो मतलब उन्होंने भी पहले, एज आई टोल्ड यू, कि पहले 6 महीने वो इंडिया में रहे, फिर उन्होंने मेडिटेशन सीखा, उसके बाद वो कनेक्ट हुए टू द हायर इंटेलिजेंस विच इज द यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड, हम कुछ भी बोल सकते हैं, गॉड, है ना, और गॉड के भी अलग अलग नाम, जो भी हम सोचें, दैट इज द हायर इंटेलिजेंस। ओके, वी कैन कॉल इट गॉड। ओके, सो पहले उनसे कनेक्ट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आगे जाके अपनी कंपनी खोली, और वो पूरी तरह से जब कंपनी को चला रहे थे, मतलब जब उनको कुछ पूछना होता था कि कौन सा प्रोडक्ट वो नया निकाले, तो वो हमेशा अपने हायर इंटेलिजेंस से पूछते थे। तो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग और all these people, they all use visualization, imagination, law of attraction, and a lot of gratitude. So this is a common factor in everybody. That means कि वो इतने scientific लोग थे, yet उनकी success आई थी because of imagination and connecting to the higher self, that is the universe, right? So at the end of the day, this is what immediately brings around the results. इसीलिए वो जो किस्मत विस्मत का सारा ओल्ड फैशन फंडा होता है, जिसमें हम कई लोग फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी पंडितों के चक्कर लगाते हैं, अभी भी उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं कि पिलो के नीचे ये रख के सो जाओ, ऐसे कर लो, ये लिख लो, अभी भी people do it, even now they go to so many this thing. So no, everything is always crystal clear. There is nothing called karma. Karma is what एक्सपीरियंस के तौर पे आपके सबकॉन्शियस में इनग्रेन्ड है, जिसको आप 1 सेकेंड में हटा सकते हो। ठीक है, जो जब मैंने बुद्धिज्म प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, उसमें था that millions and eons of the karmas that you have gathered can actually is very minuscule, and it can go in the fraction of a second, in an iota. That is how it is. So जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में टॉर्चर बाय सम मेल का वो है एक, मे बी लास्ट टू लास्ट, पास्ट टू पास्ट लाइफ टाइम, हमारा थर्ड लास्ट लाइफ टाइम में ऐसा हुआ था, सेम कर्मा हमको देखने को मिला, क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गया था, है ना। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ स्पॉन्ज, इट हैज एब्सॉर्ब दैट मेमोरी 3 जन्म पहले की, जिसमें किसी मेल ने किसी मतलब हमको टॉर्चर किया होगा। ठीक है, वो सेम टू सेम थिंग हैज कम इन द सेकेंड लास्ट लाइफ टाइम ऑल्सो, सेम। अब वो और सॉलिडिफाई हो गई, सीमेंट हो गई वो वाली बैड मेमोरी, है ना। तो उसके बाद फिर पिछले लाइफ टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसे ही चली गई। अब इस जन्म में हमको अब ये साइंस का एग्जैक्टली तरीका मिला है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट 3 लाइफ टाइम से
एक बैड मेमोरी है जिसके कारण इस जन्म में भी आप सफर कर रहे हो, मे बी, ओके, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी करियर, इट कुड बी मनी, इट कुड बी पार्टनरशिप, इट कुड बी रिलेशनशिप, जो भी, ठीक है। सो उस तरह से अब इस जन्म में अब वो बहुत ही सॉलिडिफाई हो गई है ना, क्योंकि वो 3 जन्म से वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में सोख होती होती आ गई है और अभी पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो भर गई है। And we don't trust anybody because of that, because someone had tortured her so many janam ahead, okay, behind. So now what we can do is, the science of the subconscious mind में यही होता है, आप जैसे ही नया प्रोग्राम डालोगे सबकॉन्शियस माइंड में, वैसे ही पुराना वाला जो प्रोग्रामिंग है जो पिछले 3 जन्म की थी वो डिलीट हो जाती है। ओके, सो यू पुट दिस ग्लास हियर, ऑटोमेटिकली जो यहाँ की ग्लास है वो चली जाती है और नई ग्लास आप रख देते हो उसकी जगह पे। सो यही तो हम कर रहे हैं इस बुक में, हम ग्रैटिट्यूड की नई ग्लास रख रहे हैं। तो अपने आप जो पुरानी वाली चीजें थी जो शायद हमको पता भी नहीं है ना, वी डोंट रिमेम्बर आवर पास्ट लाइफ टाइम एंड बिफोर दैट एंड बिफोर दैट, दैट्स टोटली डिसिपेटिंग एंड इट विल गो आउट ऑफ आवर लाइफ फॉरएवर, ओके, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली प्लांटिंग थैंक यू। तभी मैंने बोला था, अगर आपका किसी से झगड़ा भी होता है ना, आप बार बार लाइक अ पैरेट यू कैन कीप टॉकिंग, यू नो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, अपने दिमाग में। आप नेगेटिव जोन में मत जाओ, ठीक है, हुआ जो हुआ भूल जाओ उसको, वो हमारे दिमाग का क्रिएशन था, तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, एंड दिस हैज टू गो ऑन टिल द टाइम you don't become at peace with it. Okay, so this is how we are reprogramming our mind. This is called reprogramming the mind. Okay, so keep reprogramming with gratitude, with love, with appreciation, you know, and all that. और अच्छी अच्छी चीजें सोचो, future presence में रहो, ये सोचो कि वाओ ये हो जाएगा तो क्या होगा, you know, if this happens, how beautiful will my travel be, what will be the life like, you know, when I celebrate my, say, 60th birthday, you know, how am I celebrating it? So be in the future presence and make peace with where you are. Okay, till the time हम current से peace नहीं बनाते ना, तब तक आगे के दरवाजे नहीं खुलते हैं। So यही रोंडा बर्न ने इसमें समझाया है that, you know, like उनका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अभी recently, and जो लुइस ने लिया था, I love लुइस and उनके जो इंटरव्यूज वो लेते हैं on the YouTube, तो वो रोंडा बर्न यही बोल रही थी कि उनसे पूछा था that what is that one regret आप अपने पास्ट के बारे में बताना चाहते हो जो आप शायद जो आप अनडू कर सकते हो, तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू नो लाइक वो नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव टेकन द नेक्स्ट स्टेप। शी सेज दैट आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद माय पास्ट नाउ, एंड नाउ आई रियलाइज व्हाई ऑल दोस थिंग्स हैड हैपेंड, है ना, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो इसीलिए हमको बिना रिग्रेट्स के आगे चलना है, बिकॉज देखो कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं होता है ना, तब तक हम मे बी नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं कई बार, फिर हम अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहते हैं, नोन जोन जिसको बोलते हैं ना, वी आर इन द नोन, but growth, success and opportunities always happen in the unknown when you step out of your comfort zone, right? So that is how it is. So यही हमको बताया है कि रोंडा बर्न ने बताया है कि 7 years ago जब उन्होंने डिस्कवर की थी द सीक्रेट एंड पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, तब उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी, और वो उस वक्त बहुत लॉन्ग लिस्ट थी। उस वक्त उनको लग रहा था कि जब आप 2 million डेट में होते हो तो आप कैसे सोच सकते हो, मतलब तब आपको यही होगा ना कि बस मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं स्टाफ को पे कर दूं, मेरे पास इतना पैसा आ जाए मैं ये कर दूं और व्हाटएवर कर दूं, ठीक है। तब आप ये नहीं सोचते हो कि वाओ मेरा, यू नो लाइक उनको रेंज रोवर कार चाहिए थी, वो इसमें नहीं है, वो उन्होंने किसी और किताब में लिखी है। तो उनको बहुत था कि मुझे एक बहुत बड़ा मैंशन चाहिए, वैसे जो ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट वाला होता है बाय द सी, ये और रेंज रोवर कार। वो कहती है कि मेरे मन में ये था कि मुझे रेंज रोवर ही चाहिए थी, और चाहिए थी वेरी बैडली। तो ये भी उनके डिजायर लिस्ट में था, ये वाला घर और ये वाली गाड़ी, एंड शी कुड वेरी इजीली बाय दैट इन लेस देन 2 years, मतलब उनको ड्रीम लिस्ट में 2 years भी नहीं लगे उनको ये दोनों खरीदने में। एंड देन ऑफ कोर्स जो बाकी की चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी उनकी ड्रीम लिस्ट में, टू रिस्टोर ऑल द रिलेशनशिप्स टू द बेस्ट इट कुड बी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन से रिलेशनशिप अच्छी की, उनके डिजायर लिस्ट में था टू रिस्टोर ऑल द रिलेशनशिप्स टू द बेस्ट इट कुड बी, मतलब जो बेस्ट रिलेशनशिप्स हो सबके साथ में, टू बी 100% हेल्दी अगेन, यू नो लाइक इस तरह का बहुत ही बड़ी बड़ी डिजायर्स। जब वो कह रही थी कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मुझको नहीं होती थी, यू नो, उससे ये वाली ड्रीम सोचना, isn't it? It's like really amazing.
सो उसके बाद उन्होंने एक और चीज लिखी है दैट मैंने अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट हमेशा अपने साथ में कैरी करी ऑन अ पीस ऑफ पेपर एवरी डे। ओके, तो ऐसे नहीं हो गई थी, लाइक ऑल द स्टेप्स दैट शी टुक शी इज टेलिंग अस नाउ। और वो बोलती हैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं अपना लिस्ट निकालती थी और मैं पूरी लिस्ट पढ़ती थी और खूब सारा ग्रैटिट्यूड देती थी उसको एज मच एज आई कुड, एज दो, और ऐसे फील करती थी एज इफ मुझे वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से दिस इज व्हाट इट इज। सो इसमें यही है दैट अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट जो भी आपके मेन ड्रीम्स हैं, say the magic words thank you for it multiple times in a day। मतलब मल्टीपल टाइम्स इन अ डे हमको बोलना होगा और फील करना पड़ेगा एज इफ इट हैड कम ट्रू। सो उसके बाद इनका बिफोर हर वेरी आई सारे अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो गए। फिर उन्होंने अपने बोरा बोरा का एक्सपीरियंस पूरा बताया है और ये भी लिखा है नो मैटर हाउ बिग योर डिजायर्स सीम टू बी, चाहे आपके सपने कितने भी बड़े हों, मतलब जो आपको लग रहा है कि ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जैसे अगर आप अपने आप को बोलो आई वांट टू हैव $1 million और 1 करोड़ मेरे अकाउंट में, अगर आपको अभी लग रहा है कि सपोज अगर आपके अकाउंट में अभी 5 लाख रुपए, आपको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए मेरे लिए या 10 करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ा है, मतलब अभी सोचने में आपको मुश्किल लग रहा है, बट रॉन्डाबन अश्योर करती हैं कि चाहे कितने भी बड़े आपके डिजायर्स हो, आप ग्रैटिट्यूड से कुछ भी जिंदगी में पा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके अलावा जो जॉय एंड हैप्पीनेस आएगा वो प्राइसलेस है ना। सो दैट्स इट, यही है हमारा आज का प्रैक्टिस जिसमें हमको अपनी डिजायर लिस्ट सुबह सुबह आंखों के सामने रखनी है और डिजायर लिस्ट पढ़ के मन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एज इफ ऑलरेडी हो चुका है, और सुबह के अलावा दिन में 2 बार और, बिकॉज 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, तो टोटल दिन में 3 बार हमको डिजायर लिस्ट निकालनी है। एक एक डिजायर पढ़ के हमको मन में ग्रैटिट्यूड फील करना है एज इफ वो हो चुका है, और आज के बाद से ये डिजायर लिस्ट हमेशा अपने साथ रखनी है। तो एज आई मेंशन हार्ड कॉपी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड प्लस वी डोंट वांट टू लाइक वो ऐसे फिजिकल कॉपी रखें और इधर उधर कहीं गिर जाए कुछ हो जाए। आप उसकी फोटो अपने फोन में खींच लो, नहीं तो अपने फोन के नोटपैड में ही आप डिजायर लिस्ट दोबारा से क्रिएट कर लो। ठीक है, वट एवर इट इज यू वांट टू डू। जो आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खुद का बनाया हुआ है, अगर बनाया नहीं है तो बना लो, अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें सारी आपकी चीजें हैं, आपके एफर्मेशंस हैं। ठीक है, आपको कोई इंस्टाग्राम रील पसंद आई है जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, वो वाली चीज है। आपको कोई वीडियो बहुत अच्छा लगा है जिसको आपको देख के बहुत हैप्पीनेस होती है, आप वो रख सकते हो। आप अपने विजन बोर्ड की फोटो रख सकते हो, जिस तरह का आपको घर खरीदना है वैसे रख सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में पार्टनर ढूंढ रहे हो और आपको बहुत स्वीट सी पिक्चर है कि 2 जने हाथ पकड़ के बाय द बीच साइड चल रहे हैं, आप वो रख सकते हो। वॉट एवर इट इज यू वॉन्ट टू राइट, आप अपना वर्कआउट रख सकते हो। सो मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारी वैसी बहुत सारी चीजें हैं, वर्कआउट्स हैं, एफर्मेशंस हैं, लेटर टू द यूनिवर्स है, स्क्रिप्टिंग्स हैं, फोटोज हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, जिन जिन कंट्रीज में मुझे जाना है उनके रील्स हैं। सो इस तरह की चीजें हैं। तो वो आपका ग्रुप है ना, और उसमें आप ही हो अकेले। सो व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना खुद का भी बना सकते हो। आजकल तो डायरेक्ट ऑप्शन आ गया है मेक अ ग्रुप विथ योरसेल्फ, मतलब आपका नंबर भी आ जाता है उसमें। सो इस तरह से, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत आसान होता है। वो ग्रुप बनाने में आप अपने आप को बनाओ और अपने कोई भी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को बना लो और उनको एग्जिट कर दो। ठीक है, तो आप अकेले रह जाओगे उस ग्रुप में, और यूज दैट टू लाइक सी द पिक्चर्स एंड इमेजेस एवरी डे। तो अपनी ड्रीम लिस्ट भी आप उसमें डाल सकते हो, टाइप कर लो या फोटो खींच के डाल लो, आपकी मर्जी है। दैट वुड मेक एनी डिफरेंस टू द रियलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम्स। So this is magic practice number 22 before your very eyes. First वाला count your blessings, सुबह सुबह उठ के 10 blessings लिखना that I'm, जो चीज already आपके पास है उनके बारे में। और language would be I'm so happy and grateful that I have such beautiful shoes that I wear, which are so stylish and so comfortable. Then whatever, to your wardrobe you can say thank you, to your makeup, have you ever said thank you to your makeup things, to your comb, to your shampoos and conditioners? Do that, it will make a difference to your hair and body. So ऐसे 10 हमको blessings लिखने, कोशिश करो कि रोज अलग अलग blessings हो, है ना। जितनी वैरायटी, जितने अलग अलग एरियाज, नूक्स एंड कॉर्नर्स में आप जा सकते हो थैंक यू बोलने के लिए, उतना कोशिश करो।
और फिर उसको रीड करना होता है और हर एक को रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर आज की प्रैक्टिस एट द स्टार्ट ऑफ द डे, यानी कि अब भी सुबह सुबह हमको अपनी डिजायर लिस्ट निकालनी होगी जो हमने क्रिएट की थी, और हमको एक एक डिजायर पढ़ना होगा और 1 मिनट के लिए इमेजिन करना होगा दैट हमको वो डिजायर मिल गया है और अब आपको कैसा फील हो रहा है, एंड फील एज मच ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा तरीका है that people are congratulating you on that, whosoever, or you're sharing it with someone. ये visualization में आप कर सकते हो that people are congratulating you for that, so it's a very quick, बहुत quick manifestation होती है उससे। और ये हो गया 10 हमने डिजायर पढ़ लिए, 10 को 1-1 मिनट के लिए विजुलाइज कर लिया, मतलब 10 मिनट की प्रैक्टिस है ये बस, ठीक है। उसके बाद दिन में 2 बार और अपनी डिजायर लिस्ट निकालनी है, पूरी की पूरी पढ़नी है और थैंक यू बोलना है। फिर 1-1 मिनट विजुलाइज नहीं करना है बाकी के 2 बार, ठीक है। विजुलाइजेशन आपको सुबह ही करना है, फिर बाकी के जो 2 बार है आपको पूरी लिस्ट पढ़नी है और थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर आंसरिंग ऑल माय प्रेयर्स, आई लव यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज आंसरिंग ऑल माय प्रेयर्स। बस ये वाला कर लो दिन में 2 बार और फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, हाथ में पत्थर लो, थिंक थ्रू द डे, स्मॉल चीजें निकाल के, ठीक है। इवन इफ इट इज अ स्मॉल बिट ऑफ कॉन्वर्सेशन आपका किसी के साथ हुआ, उसके लिए भी ढेर सारा थैंक यू, ठीक है। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू, खाना गरम गरम आपने खाया उसके लिए थैंक यू, खाना बहुत टेस्टी था उसके लिए थैंक यू, नमक बिल्कुल ठीक था पूरे खाने में उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद जो कुछ ऑफिस में घर में जो काम हुए, आपकी डोमेस्टिक हेल्पर आके आज बहुत अच्छे से डस्टिंग करके गई, उसके लिए थैंक यू। आपने कुछ अच्छा सा बनाया उसके लिए थैंक यू। आपको कोई ब्यूटीफुल सरप्राइज मिली, छोटी सी सरप्राइज थी उसके लिए थैंक यू। आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया इसके लिए थैंक यू। ऐसे पूरे दिन भर को हमको स्कैन करना होता है और फिर उसमें से बेस्ट चीज निकालो कि अच्छा कौन सी अच्छी थी, ये अच्छी थी, ये अच्छी थी। तो मैं यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देती हूँ, कभी कभी उन पे छोड़ देती हूँ कि देखो मुझे ये 3 बेस्ट चीजें लगी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बेस्ट कौन सी चूज करूँ, आप चूज कर लो, बाय बाय, बस, ठीक है। एंड दैट इज ऑल, एंड दिस फिनिशेस आवर चैप्टर नंबर 22। और कल बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, कल से हम अपनी पावर को यूज करेंगे अपनी उन चीजों के लिए जो हमारे बॉडी के बाहर है, हमारी लाइफ के बाहर है। एंड नाउ वी गो टू द अदर बुक which is the power of the subconscious mind by Dr. Joseph Murphy, जहाँ पे हम youthfulness and how to stay young forever का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं be your age. So who was reading today? I think I'll be reading. yeah. Poonam. हाँ पूनम, तुम पढ़ती नहीं हो ना इसलिए मुझे याद नहीं आया। मैं सोच रही थी रमन पढ़ रही है कि रीना पढ़ रही है कि मीतू पढ़ रही है। So yes. Should I start, ma'am? Yeah, please do. Good morning, everyone. Be your age. A motion picture writer in Hollywood told me that he had to write scripts which would cater to the 12-year-old mind. This is a tragic state of affairs if the great masses of people are expected to become emotionally and spiritually mature. It means that the emphasis is placed on youth, in spite of the fact that youth stands for inexperience, lack of discernment, and hasty judgment. हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें कभी कभी होता है कि जब हम उम्र में भी बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी हम मतलब इतने हेस्टी जजमेंट करते हैं, जजमेंटल होते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, ये सारी चीजें एक उम्र के बाद व्हेन यू एंटर्ड योर 40s, अब आपने अपने 40 इयर्स अच्छे से जी लिए ना, तब आपने किया जो करना था। Now be very careful about your conduct and your judgmental attitude. I see people are so judgmental about situations, so we don't have to be, वो जो छोटे छोटे irritations हैं, जो चिड़चिड़ behavior, you don't accept something from someone, all that ये age को भी नहीं सूट करते, because when you come of a certain age, तो इसमें लिखा हुआ है ना कि don't get into all those discernment, जो judgmental attitude, या there is a certain level of wisdom that should be there, isn't it? The conduct, the confidence, the wisdom, the correct judgment. कोई advice मांग रहा है तो उनको बहुत ही एक like give them a advice from a drone view, like क्या बोलते हैं, एक bird's eye view दो, ये नहीं कि मुझे ये ऐसा लगता है। तो एक वो कहते हैं ना ड्रोन व्यू अलग होता है, तो एक ड्रोन व्यू वाला उनको एडवाइस दो दैट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द प्रॉस, दिस इज द कॉन, सो लेट्स गो विद दिस, so that should be our conduct. It should not be that हर चीज में चिड़ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं,
एक उम्र के बाद ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, और फिर वैसे भी और वो सारा हो गया ना, वो टर्बुलेंट टाइम्स और स्ट्रगल जो जिंदगी का था, all that's mostly over, है ना? So there's a certain level of wisdom that we need to have. तो इसीलिए लिखा हुआ है that जब बच्चे होते हैं या यूथ होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, दे हैव इनएक्सपीरियंस, लैक ऑफ डिसर्नमेंट, वो चीजों को अच्छे से बूझ नहीं पाते, दैट्स कॉल्ड डिसर्नमेंट, समझ बूझ थोड़ी सी कम होती है, और हेस्टी जजमेंट करते हैं जब यूथ में होते हैं। तो ठीक है, वाइल डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपको फॉरएवर यूथफुल होना चाहिए, बट इन चीजों के साथ नहीं, इनमें यू हैव टू बी योर एज, वेरी वाइज, वेरी सेंसिबल, वेरी मैच्योर, एंड ऑलवेज सी अ थिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दूसरे के शूज में रह के सोचना, ये सारी चीजें एक उम्र के बाद ही आती है। हाँ जी। I can keep up with the best of them. I'm now thinking of a man 65 years of age who's trying frantically to keep young. He swims with young men every Sunday, goes on long hikes, plays tennis, and boasts of his prowess and physical powers, saying, "Look, I can keep up with the best of them." He should remember the great truth that is, as a man thinks in his heart, so is he. Diets, exercise, and games of all kinds will not keep this man young. It is necessary for him to observe that he grows old or remains young in accordance with his process of thinking. Your subconscious mind is conditioned by your thoughts. If your thoughts are constantly on the beautiful, the noble, and the good, you will remain young regardless of the chronological years. Yeah, so it is. Yeah, so here it talks about this 65-year-old man जो यंग लोग के साथ स्विमिंग करते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे, घूमते फिरते थे, तो और वो हमेशा अपने आप को बोलते थे कि सी आई एम एबल टू कीप अप विथ ऑल दीज यंग पीपल, क्योंकि उनके दिमाग में ये था that आई एम नॉट like I can do anything, like my physical fitness मेरी बहुत अच्छी है, वो जिसके कारण वो थे। तो डॉक्टर मर्फी यही बता रहे हैं कि जस्ट डाइट, एक्सरसाइज एंड गेम से आप यूथफुल नहीं रहते हो, माइंडसेट भी वैसे होना चाहिए, है ना? माइंडसेट भी होना चाहिए, थॉट्स वैसे होने चाहिए, इन योर माइंड यू हैव टू थिंक दैट, ऐसे नहीं कि वो मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, अब मेरी उम्र हो रही है, आई कैन डू दिस, बट यू आर ट्राइंग टू ईट जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज से अब अपने आप को कर रहे हो। तो इसीलिए माइंडफुलनेस बहुत जरूरी होती है, आपका माइंडसेट क्या है, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो ही सेज दैट अपने थॉट्स में अपने आप को यंग रखो, that's very important. So it says क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसमें डाइट और एक्सरसाइज और ये सब नहीं जा रहा है, उसमें हमारे थॉट्स फिल्टर होके जाते हैं, और वो धीरे धीरे रिपीटेड थॉट्स जो होते हैं, रिपीटेशन से वो सीमेंट होते जाते हैं, है ना? सो अच्छा है कि ऐसे थॉट सीमेंट हो दैट आई एम फिट, आई एम यंग, एंड like I can do anything that I want to, my physical fitness is increasing every day. अब इस तरह के अगर रिपीटेड थॉट्स होंगे, दिमाग में चलेंगे, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल गेट फिटर एंड फिटर। तो इसीलिए लिखा हुआ है दैट अगर आपके थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द ब्यूटिफुल, नोबल एंड द गुड, यू विल रिमेन यंग रिगार्डलेस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। सो अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज द की एक्चुअली। There are people, आप कोई सी भी मतलब some of us might be using very expensive creams and lotions and all of that, अपने एंटी एजिंग उसके लिए, बट अगर आप मतलब वो 50 रुपीज वाली भी क्रीम अगर यूज करते हो ना अपने फेस पे, ठीक है, लेकिन आप अपने थॉट्स में और उसमें आप बहुत यूथफुल हो, तो स्किन विल स्टिल रिमेन वेरी टाइट, इट विल गिव द सेम इफेक्ट जो 5000 की क्रीम थी। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ जी। Fear of old age. Job said, "The thing which I greatly feared is come upon me." There are many people who fear old age and are uncertain about the future because they anticipate mental and physical deterioration as the years advance. What they think and feel comes to pass. You grow old when you lose interest in life, when you cease to dream,
to hunger after new truths, and to search for new worlds to conquer. When your mind is open to new ideas, new interests, and when you raise the curtain and let in the sunshine and inspiration of new truths of life and the universe, you will be young and vital. हाँ, अगर हमारी एज बढ़ रही है ना, तो हमको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हम, लोगों को डर लगता है क्योंकि हमको पता रहता है कि जब उम्र बढ़ती है तो आप फिजिकली कमजोर हो जाते हो, आपकी मेंटल पावर थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी चली जाती है, आप अच्छे नहीं दिखोगे, ये सारे फियर्स होते हैं हम में। तो इसमें लिखा हुआ है यू डोंट हैव टू फियर ओल्ड एज, और मतलब बिल्कुल अनसर्टेनिटी के साथ में, बिकॉज आप डिसाइड कर सकते हो आपकी एज कैसे होनी चाहिए, दैट यू एजिंग ग्रेसफुली, आप लास्ट डे तक बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तो अपना डे ऑफ द डेथ भी डिसाइड कर लिया था, उन्होंने ऐसे मतलब उनको पता था कि वो किस दिन ट्रांजिशन ले रहे हैं। ही सेड दैट आई एम टेकिंग अ ट्रांजिशन, पर डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक अ ट्रांजिशन। ठीक है, तो इतना तक पावर आ जाती है व्हेन यू कैन कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, और आप मतलब बहुत अवेयरनेस के साथ रहते हो। द ओनली वे इज टू बी अवेयर, है ना। सो रोंडा बर्न की जो बुक है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसमें उन्होंने अवेयरनेस के बारे में बताया कि हमेशा अवेयर रहो कि आप अपने मन में किस तरह के विचार लेके आ रहे हो, आप इस वक्त क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या आप थिंक कर रहे हो, क्या आप रिपीटिशन में सोचते जा रहे हो, क्या आप ग्रोथ एंड प्रोग्रेस का रिपीटेटिव थॉट्स कर रहे हो, कि आप फेलियर के रिपीटेटिव थॉट्स कर रहे हो। तो वो सारी चीजें भी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। तो ये दिस इज व्हाट मैटर्स, इजंट इट। सो माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है एट टाइम, सो यू कैन डिसाइड योर फ्यूचर दैट आप बहुत ग्रेसफुल रहोगे, आप बहुत अच्छी हेल्थ। जरूरी थोड़ी है कि 80 इयर्स होने के बाद भी आपका दवाई का डब्बा खुल रहा है। नो, I mean, you don't have to be taking that. You can decide that my health, I am enjoying the perfect health, and I will continue to enjoy the perfect health all my life till the last day of my life. And when I have to die, I will die in my sleep. Zero suffering. Okay, so all that, इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें डिसाइफर करके डिसाइड करने की। सो दैट इज हाउ एज शुड बी। तो इसीलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेंटल एंड फिजिकली आप डिट्यूरेट हो जाते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ठीक है, यू कैन स्टिल बी इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, isn't it? So हम वो affirmation भी करते हैं ना, I am in the best shape of my life. So no matter what your age is, chronological age doesn't matter, you can still be in the best shape of your life. So that is what. So इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने को आ रही है और ये है अब मैं क्या करूं। इसमें है दैट डेवलप न्यू इंटरेस्ट इन लाइफ। मैंने आपको बताया था ना, एक आंटी थी 82 ईयर ओल्ड, वो एक्चुअली बहुत अच्छे लड्डू बनाती थी, चंडीगढ़ में रहती हैं, अभी भी रहती है, ठीक है, चंडीगढ़ में रहती हैं। तो उनकी हुनर थी कि वो बहुत अच्छे लड्डू बनाती थी। उनके बच्चे बच्चे सब हो जाता है ना कि अब्रॉड सेटल हो गए थे और वो अपने अपने लाइफ में बिजी थे, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो वो सारे, तो वो मतलब फिर उन्होंने हमारे वाले ये सब सेशंस किए मैजिक बुक साथ पे। सो मैजिक बुक करके फिर उनको 80 इयर्स में मतलब उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट, जो ये सारी मैजिक बुक ये सब कोविड में ही हमारे पास आई है ना, पहले तो हम लोग ऐसे स्टडी नहीं करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था जूम क्या होता है। उसके पहले मुझे पहली बार जूम पता लगा था अप्रैल 2020 में। सो उन्होंने वो तभी हमारे साथ सेशंस करती थी, और शुरू शुरू में जब हम खुद सीख रहे थे, तो उन्होंने तब हमको कही गई थी ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए, तो उन्होंने ड्रीम लिस्ट में बनाया, मतलब उन्होंने लिखा कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और बहुत ही क्रिएटिवली बिजी रहना चाहती हैं वो, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमेजिन एट द एज ऑफ 80। ठीक है, तो धीरे धीरे समय चलते ऐसा हुआ दैट शी यूज्ड टू मेक वेरी टेस्टी लड्डूज। ओके, तो वो बहुत अच्छे, मतलब अपने घर वालों के लिए बनाती थी बस। उसके बाद उन्होंने उस लड्डू का एडवर्टाइज करना शुरू, मतलब शी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग अबाउट दिस थिंग, और लोगों को पता लगा। फिर किसी को लड्डू चाहिए थे, उनके घर में कोई गेस्ट आने वाले थे, तो उन्होंने ये लड्डू बना के दिए। फिर किसी के घर में शादी हुई, उन्होंने इनको 500 लड्डू के पैकेट के ऑर्डर दिए। कैन यू बिलीव इट? और आज की तारीख में कमर्शियली वो मतलब लड्डू बनाने का काम करती हैं। अब उन्होंने ऑफ कोर्स अपनी अलग पैंट्री एरिया अलग से खोल लिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एंगेज किया है, लेकिन अभी वही क्लासिक रेसिपी के हिसाब से वो बना के अभी भी लड्डू देती हैं। एंड विद इन लाइक 6 months उनका काम इतना फार एंड वाइड फैल गया कि उन्होंने एक्सपोर्ट भी किए लड्डूज आउटसाइड द कंट्री फॉर सम ओकेजन दैट सम इंडियन फैमिलीज वांटेड।
Okay, this is the power of gratitude, that when you really say thank you to your dream list, even at the age of 80. So क्योंकि हम उम्र की बात कर रहे हैं अभी, और इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट अपना विजन रखो, चाहे आपकी कुछ भी उम्र हो, ये मत सोचो कि मैं इतना, मतलब ये इतना कुछ हो गया है. You can still bloom like a flower. You can, you can do whatever. अपना एक अलग विजन, मे बी अपने ट्रैवल गोल्स रख सकते हो, कुछ भी, कोई भी चीज, कुछ इंटरेस्ट इन लाइफ होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ममाज, एंड उनको ना वो है दैट आर्ट ऑफ कुकिंग, कुछ चीजें वो बहुत अच्छी बनाते हैं. सो बेकिंग में भी बहुत अच्छी करते हैं, तो उसको कमर्शियली यूज कर दो पैसे कमाने के लिए, और दूसरों के स्वाद पैलेट को भी आप केटर कर रहे हो. कितनी अच्छी चीज है ना, किसी के घर में अन्न जा रहा है आपकी वजह से, आपके हुनर की वजह से. तो इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है. मैंने तो ऐसे ही वो ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, बट इट कुड बी जस्ट एनीथिंग, लाइक कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं. सो I would always tell Priya's dad also, so he's just passed away last month. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, जब वो रिटायर हुए तो मैंने उनको देखा था कि वो घर में, उनको बहुत वो लग रहा था कि अब रिटायर हो गए, क्या करें, और वही सुबह उठो रात तक, मतलब वो मंडेन रूटीन हो गया. तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा अंकल आप इतने, मतलब IIT से निकले हुए हो, आपको इतनी अच्छी, उनकी मैथ्स इतनी बढ़िया थी कि व्हेन माय सन had his so my elder one is an architect. सो उसका जब एग्जाम होते थे तो अंकल उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे, और बहुत क्लियरली, मतलब वो कुशल यूज्ड टू सिट विद अंकल एंड ही वुड, जबकि उनको रिटायरमेंट हुए कुछ साल हो चुके थे तब तक, तो उनके कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से समझ के आता था उनसे, और ही वुड रियली अप्रिशिएट दैट अंकल ने वो इतने अच्छे से समझाया, मुझे पहले समझ में नहीं आता था. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, आप अपना ट्यूशन सेंटर या कुछ क्यों नहीं खोल देते, आप घर में ही रह के, आपको कहीं जाना तो नहीं है, एटलीस्ट आप प्रोडक्टिव रहोगे उस तरीके से. ही वुड जस्ट नॉट लिसन. ही सेड नहीं, बस अब रिटायरमेंट हो गया, अब मेरा बस समय खत्म हो गया पढ़ाने लिखाने का, एंड नाउ आई विल नॉट टीच. सो दैट वे, और उसके बाद उनकी हेल्थ डिट्यूरेट होती गई, लाइक दैट इज हाउ इट इज. सो मेक योरसेल्व्स यूजफुल एंड प्रोडक्टिव, चाहे हमारी कोई भी एज हो. ड्रीम लिस्ट में तो लिखो ना, मतलब हमेशा एक फ्यूचर का विजन होना चाहिए. ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बस ये हो गया और अब खत्म हो गया. ठीक है, एटलीस्ट हम किसी एनजीओ में जाके हेल्प कर सकते हैं, isn't it? किसी एनजीओ में जाके वी कैन बी ऑफ यूज. हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं. इतने सारे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं बट वो लॉस्ट जाते हैं, क्योंकि क्लास में 70-80 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है. तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है एक बार में, है ना, उनको दोबारा. तो हम अपने आप को उस तरह यूजफुल बना सकते हैं कि हम किसी एनजीओ में जाके वर्क कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हैंड होल्डिंग दे सकते हैं, उनको अच्छे से ABCD क ख ग घ अच्छे से लिखना सिखा सकते हैं. सो वी हैव टू बी यूजफुल, लाइक इन आवर ओन वे. चाहे हमारी कोई भी एज हो, इतने इयर्स ऑफ विजडम है, उसको वेस्ट क्यों करें हम, है ना. इतने साल इतने अच्छे से घर परिवार को बांध के रखा हुआ है, और वो ग्रो हो रहा है, तो सोचो इतने इयर्स ऑफ विजडम है, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, है ना, फॉर समवन एल्स. तो इस तरह से इसमें यही डॉक्टर मर्फी ने लिखा हुआ है दैट अपने लाइफ को यूज करो, बी यूजफुल टिल द लास्ट डे, एंड नेवर सीज टू ड्रीम. सपने देखना बंद मत करो, चाहे आपकी कोई भी एज हो. So that's what it says, that जब आपका दिमाग is open to new ideas, new interest, and when you raise the curtain and let the sunshine and inspiration of the new truths of life and the universe, आप हमेशा young और powerful और strong रहोगे. क्योंकि आप अपनी जिंदगी किसी के लिए यूज कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ऐसे थोड़ी ना परेशानी देगा, है ना. So that's how it is when you're very useful in your own way. तो इसमें है कि let the sunshine and inspiration come into your life. So beautifully लिखा हुआ है ये वाले last 3 lines. ठीक है. सो बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू इंटरेस्ट. ये मत सोचो कि अब मैं नहीं कर सकती, अब मुझे ड्राइव करना नहीं आ सकता, अब मुझे ऐसे नहीं होगा, अब मुझे वैसे नहीं होगा. डोंट थिंक लाइक दैट. इट्स योर लाइफ, एंजॉय इट ब्यूटिफुली, कीप ड्रीमिंग. कोई उम्र नहीं होती है ड्रीम्स करने के लिए. आई थिंक टाइम हो गया क्या? नहीं. You have much to give. If you are 65 or 95 years of age, realize you have much to give. You can help stabilize, advise, and direct the young generation. You can give the benefit of your knowledge, your experience, and your wisdom. You can always look ahead, for at all times you are gazing into infinite light.
you will find that you can never cease to unveil the glories and wonders of life. Try to learn something new every moment of the day, and you will find your mind will always be young. सो ये मतलब तब की बात है जब डॉक्टर मर्फी ने किताब लिखी थी, जो इन्होंने लिखा है कि जब आप न्यू थिंग्स लर्न करते हो, जब आपको कुछ सुनना, पढ़ना या करना अच्छा लगता है, अगर आप वो करते रहोगे और नई चीजें सीखोगे, लगातार आप नए ब्रेन सेल्स बनाते रहते हो। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में लर्निंग और एक्सरसाइज, अगर आप लर्निंग और एक्सरसाइज की वजह से हमारे दिमाग में लगातार न्यू नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, वो जनरेट हो रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग भी कभी कम नहीं होगा। हमने देखा था ना, खुशवंत सिंह डाइड एट द एज ऑफ 99, वो किताबें लिख रहे थे अपने 90s में भी, एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, हिज वे ऑफ व्हाटएवर, यू नो, लाइक सो मतलब लगातार जब आप नई चीजें क्रिएट करते रहते हो, नई चीजें सीखते रहते हो, नई चीजें पढ़ते रहते हो, नई चीजें करने की कोशिश करते हो, तो हमारे दिमाग में हमेशा ब्रेन स्टेज यंग ऑल द टाइम। ओके, एंड यू विल सी दैट इट विल, यू नो, लाइक आप यूथफुल रहोगे बहुत ज्यादा। सो ये फायदा होता है। और दूसरी चीज, चाहे आप 65 या 95 years old हो, सो यू हैव सो मच, सारे एक्सपीरियंस है आपको लोगों को देना बहुत जरूरी है। इट इज द टाइम टू गिव नाउ, बिकॉज आपने जिंदगी ने बहुत सारा सिखाया है। ठीक है, मतलब इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, जिंदगी बहुत सारा सिखाती है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, यू नो, लाइक जब भी लाइफ आपको सिखाती है कि ठीक है। आई रिमेम्बर कि जब मैं बहुत पहले डाइट कंसल्टेंसी करती थी, यू नो, इन द 90s, उससे मेरा अभी का जो मतलब जो एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा सिखाया है। ऑफ कोर्स मैं लगातार पढ़ती आ रही हूँ, मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ, मैं हमेशा लेटेस्ट रिसर्चेस पढ़ती हूँ, यू नो। सो रिसर्चेस आप गूगल स्कॉलर पे पढ़ सकते हो, बिकॉज वहां पे सारी लेटेस्ट रिसर्चेस आती है। सो वो सारा कुछ, बट जो एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया ना, वो मुझे किताबें भी नहीं सिखा सकती। दिस आई हैव सीन, आई नो दैट दिस इज हाउ इट हैज वर्कड, यू नो। ये खाना देने से ये होता है, ये नहीं देना है, ये अगर देते हैं, मतलब जितना आप चेंज कर सकते हो डाइट में उतना ज्यादा असर पड़ता है। तो कुछ चीज जो अभी दी है वो अगली बार नहीं देते हैं, यू नो। सो व्हाट आर द चेंजेस, और कौन सी चीज हटाने से क्या होता है, कौन सी चीज देने से क्या होता है, ये सारी चीजें किताबों ने नहीं सिखाई है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस ने सिखाई है। सो दिस इज व्हाट वी, यहाँ पे डॉक्टर मर्फी ने लिखा हुआ है कि जो एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में सिखाता है ना, उसको जब आप देते हो, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो आप बहुत अच्छे से यूथ जनरेशन को स्टेबलाइज एडवाइस दे सकते हो और उनको डायरेक्शंस बता सकते हो कि ट्राई टू डू दिस और रिमेन काम इन सच मोमेंट्स, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, या इस तरह की कोई भी चीज। जो यूथ, जब आप यूथ होते हो, बच्चे होते हो, बच्चे मतलब यू नो 20s में होते हो, तब आपको नई वो वाली समझ आती है जो अभी होती है। ठीक है, तो उस वक्त आप अपने एक्सपीरियंस से उनको समझा सकते हो, यही डॉक्टर मर्फी ने लिखा है। तो आपने जो भी नॉलेज गेन की है, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो विजडम आपको आई है समय के चलते, उसको आप यूज करो टू गिव डायरेक्शंस एंड टू कीप द हाउस टुगेदर, यू नो। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल होता है दैट एक्सपीरियंस के साथ ही होता है, दैट यू नो आपको लेट गो करना आता है, आपको यंगर जनरेशन की बिहेवियर के लिए फॉरगिव करना आता है। जितने भी लोग यहाँ पे जिनके बड़े बच्चे हैं, उनको पता है कि आप बहुत आराम से फॉरगिव कर सकते हो या बहुत प्यार से उसको हैंडल करते हो, और हैंडल करने का तरीका अलग होता है। आप वॉल्केनो की तरह इरप्ट नहीं होते अब, पहले होते थे, मे भी पहले गुस्सा आ जाता था, भर ये सब हो जाता था, सिर चढ़ा लेते थे, बिल्कुल। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, नाउ वी नो हाउ टू बिहेव, वी नो हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स। हमको पता होता है कि किस तरह, सपोज आपकी डॉटर इन लॉ या जो भी है, यू नो, लाइक बच्चे हैं, बेटा है, या फिर आपकी बेटी है और आपका दामाद है, तो अब आपको पता है कि किस तरह से कंडक्ट करना है। इवन इफ समथिंग यू नो दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, सो यू नो दैट हाउ टू गिव देम एन एडवाइस। सो आप ऑब्वियसली लड़ाई की तरह नहीं करोगे, आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, आपको पता है कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपका उस वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस तरह से हम उनको अब कंडक्ट कर सकते हैं। और हमको पता है कि घर में कैसे सबको गलतियों के साथ भी एम्ब्रेस करके रखना। ठीक है, हम सबको पता है कि एक घर में अगर 8 लोग रहते हैं, तो उसमें ये अच्छाई है, उसमें बुराई है, उसमें ये उसका बिहेवियर गड़बड़ है, ये, बट वी नो हाउ टू एम्ब्रेस देम एंड कीप देम टुगेदर, यू नो, अपने बिहेवियर। सो ये सारी चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, ये कोई किताब नहीं सिखाती है। और इस एक्सपीरियंस को, यू नो,
ये जो यूथ लोग हैं उनको थोड़ा सा समझाना, यू नो, लाइक वी कैन बी द सोर्स ऑफ काम एंड पीस इन द हाउस, सो वी हैव टू ऑलवेज बी द सोर्स ऑफ पीस, काम एंड कंफर्ट, ओके, while at the same time when we see anything wrong happening तो वहां पे हम टोक सकते हैं, बट प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, इस चीज से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब चेंज करने का टाइम है, या फिर सीखो, कुछ नया सीखो, करियर अपना इसमें एक्सपैंड करके देखो, ऐसे भी अगर ये चलता है ऐसे, और वट एवर इट इज, यू नो, लाइक अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के सोल्यूशंस होते हैं. सो यही है बस लिखा हुआ. सो वी स्टिल हैव 5 minutes so we can study 110 years old. 110 years old. Some years ago, while lecturing in Bombay, India, I was introduced to a man who said he was 110 years old. He had the most beautiful face I've ever seen. He seems transfigured by the radiance of an inner light. There was a rare beauty in his eyes, indicating he had grown old in years, with gladness and with no indication that his mind had dimmed its lights. Yeah, so this is a clear cut example. अच्छा लग रहा है मुंबई के बारे में पढ़ के कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी इंडिया आए थे, बॉम्बे गए, वहां पे उन्होंने ऐसा ये सेमिनार्स कंडक्ट करते थे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के को समझाने के लिए. तो वहां पे वो 110 साल के एक आदमी से मिले और उन्होंने देखा कि वो इतना चमक थी उनके चेहरे पे, और मतलब आईज में इतनी शाइन थी, और उनका दिमाग भी बहुत शार्प था. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. सो दीज आर रियल एग्जांपल्स कि ऐसे भी होता है. आई थिंक आवर पीएम मिस्टर मोदी, he doesn't have a single wrinkle on his face, right? I mean, doesn't have a single wrinkle on his face. He's shining, his eyes are bright, और दिमाग कितना तेज है उनका. I mean, like, it's really amazing. So we have these live examples in front of our eyes. हाँ जी. Retirement is a new venture. Be sure that your mind never retires. It must be like a parachute, which is no good unless it opens up. Be open and receptive to new ideas. I have seen men of 65 and 70 retire. They seem to rot away and in a few months passed on. They obviously felt that life was at an end. Retirement can be a new venture, a new challenge, a new path, and the beginning of the fulfillment of a long dream. It is inexpressibly depressing to hear a man say, "What shall I do now when that I'm retired?" He's saying, in effect, I'm mentally and physically dead. My mind is bankrupt of ideas. All this is a false picture. The real truth is that you can accomplish more at 90 than you did at 60, because each day you are growing in wisdom and understanding of life and the universe through your new studies and interest. So for all those who are nearing retirement, ये उनके लिए, या जिनको लग रहा है कि बहुत ही resigned attitude हो गया है लाइफ की तरफ, कि अब उम्र बढ़ रही है, अब ऐसा रहता है, तबीयत नहीं ठीक रहती and all that, please change the thoughts and change your life. Okay, because mind कभी भी retire नहीं करता. In fact, years of experience जो होता है वो बहुत beautifully unravel होता है. तो इसमें है कि अगर आप ये सोचोगे कि मेरी जिंदगी बस खत्म हो गई, अब मेरा रिटायरमेंट हो गया, बट इट इज नॉट लाइक दैट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ना. रिटायरमेंट कैन बी अ न्यू वेंचर, अ न्यू चैलेंज. मतलब आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, एक नया चैलेंज है, एक नया रास्ता खुला है, और वो शुरुआत है फुलफिलमेंट ऑफ अ लॉन्ग ड्रीम जो आपकी बहुत पहले की थी. मे बी रिटायर हो गए, बहुत पैसा है, लेकिन अभी वर्ल्ड ट्रैवल तो नहीं किया ना. ठीक है, वो कर सकते हैं. किताब लिखनी है, ठीक है, राइटिंग अ बुक, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू. रिटायरमेंट के बाद अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को पेन डाउन करना, ऐसा कर सकते हैं. या फिर कोई नया बिजनेस खोलने की सोच सकते हैं.
ठीक है, या फिर सारे मतलब इनको ट्रेजर ग्रुप बोलते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, ट्रेजर ग्रुप, बिकॉज वो एक्चुअली ट्रेजर के खजाने खजाने होते हैं वो। तो एक ट्रेजर का ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे सारे इकट्ठे पिकनिक्स पे जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कभी कभी स्टडी करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है जब 15 को, तो 14 को सेलिब्रेशन कर लेंगे, या संडे को सेलिब्रेट करेंगे सब साथ में। तो एक बहुत कॉमराडरी और एक दैट कोहेसिव और दैट सोशल सिक्योरिटी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है दैट यू आर एबल टू डू ऑल दैट, पुटिंग पीपल टुगेदर। नहीं तो फिर यही होता है कि करें क्या, क्योंकि बच्चे सारे अपने अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम है बैठने के लिए। शाम को मे भी आके थोड़ी देर दे कैन, बट देन ऑल्सो वो लोग अपने अपने कामों में बिजी है ना। तो इस तरह के अपने आप को प्रोडक्टिव, यूजफुल बनाना और सोचना कि अच्छा मेरे क्या रीजंस हैं। ऑफ कोर्स लाइक मैं अभी वहां तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन जब कोविड शुरू हुआ था तब मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई थी। मतलब जैसे मुझे पता ही नहीं था कि अब कब खुलेगा, और मुझे उस तरह का टाइम कभी मिला ही नहीं था कि ऐसे, बिकॉज मेरा बहुत ही मतलब कोविड शुरू हुआ था मार्च में भी, मैं मार्च 20 को ट्रैवल करके आई थी किसी सिटी से। आई थिंक आई वाज इन हैदराबाद एंड सब लोग मास्क पहने हुए थे, और मुझे कुछ ऐसे फ्रैंटिकली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद 22 से तो लॉकडाउन हो गया था। सो अब उस तरह की जिंदगी थी, आई एम ऑलवेज फ्लाइंग, और ये बिजी और वो बिजी, ये किताब रिलीज करनी है, ये किताब लिखनी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपनी बहुत लंबी लिस्ट बनाई, दैट पता ही नहीं था कि कब खुलेगा, इंडिया वर्ल्ड पता नहीं, सब कुछ ही बंद था। सो बहुत लंबी लिस्ट बनाई दैट दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू नाउ। ठीक है, एंड दे वर वेरी वेरी दोज, कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थी कि मुझे शीर्षासन मास्टर करना था। मैं कभी शीर्षासन मतलब सिर पे नहीं खड़े हो सकती थी, मुझे नहीं आता था। ठीक है, फिर बहुत लोगों ने कहा कि नो, आफ्टर द एज ऑफ 40 यू कांट डू दैट, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। माय ओन योगा टीचर आल्सो टोल्ड मी दैट no, after the age of 40, I said come on now, that can be a challenge. So then I mastered that। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे जो मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ शेयर भी किए थे। सो वो सारी चीजें आई अकम्प्लिश्ड, एवरीथिंग। मुझे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे किताब लिखनी थी, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ उसको, तो मुझे लोगों को बताना था कि कैसे बेनिफिट्स होते हैं, क्या होते हैं, एटलीस्ट लाइक इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो आई रोट दैट बुक ड्यूरिंग लाइक लॉकडाउन। तो इस तरह से मैंने बहुत लंबी, करीब 30 मेरे गोल्स थे जो मैंने लिस्ट बनाई थी। सो पीपल, जो बहुत लोग फिर बाद में मैंने सुना था कि वो डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि 3-4 महीने इस तरह थे। मेरे वो गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ में आते हैं जो कोविड के टाइम थे ना, that 1 year or few months, जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, एज अ पर्सन, प्रोफेशनली मैंने जितना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उस टाइम, is I would never be able to do that ever, like I always say। and उस वक्त ये मैजिक बुक मेरी जिंदगी में आई और मैंने बहुत सीरियसली प्रैक्टिसेस करनी शुरू की। तब तक ग्रैटिट्यूड होता था, बस थैंक यू, ठीक है, बस किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू, किसी ने ग्लास ऑफ वाटर दिया थैंक यू, किसी ने मेरी डोर खोला, अगर मैं किसी होटल में एंटर कर रही हूँ तो देयर इज ऑलवेज समवन नो स्टैंडिंग देयर, तो उन्होंने गेट खोला थैंक यू, किसी ने मेरा सामान, मेरा लगेज उठा के रूम में रखा चेक इन के टाइम, तब थैंक यू। बस ये ग्रैटिट्यूड का मतलब मेरे लिए ये था। ये ग्रैटिट्यूड नहीं था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई डिडंट नो अबाउट दिस साइंस। सो ये सारी चीजें कोविड में ही पता लगी। तो इतने ब्यूटीफुल इयर्स थे, मैंने खूब लिखाई पढ़ाई की, खूब वेबिनार्स लिए, फेसबुक लाइव लिए। मैं लोगों को बताती थी बार बार अपने फेसबुक लाइव से, इंस्टाग्राम लाइव से, कि कैसे आप कोविड से बच सकते हो। कोविड में सिर्फ आपको हाइड्रेशन और विटामिन सी की जरूरत है, डॉक्टर के पास मत जाओ, लाइक हॉस्पिटल के अंदर मत जाओ, क्योंकि वहां पे लोग डिहाइड्रेशन से डेथ हो रही थी। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, दिस आई न्यू दैट टाइम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लाइक आई बहुत वैल्यू ऐड करी है उस फेज में। तो सिमिलरली जैसे रिटायरमेंट फेज आ जाता है, या अभी अगर हम लोग में से कुछ लोग बुजुर्ग हैं और उनको लग रहा है कि एमलेस लाइफ है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। okay, have that hope and desire and inspiration and excitement for the rest of the life, that ठीक है अब थोड़े फ्री हैं तो अब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बहुत दिनों से मेरा करने का मन था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक आपके वर्किंग ईयर्स हैं तब तक आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है। ठीक है, उसमें आप कुछ और फिट इन नहीं कर सकते। लेकिन अब आप फ्री हो तो आप अपने सपनों पे काम करो, सारी उन चीजों की लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप पहले वॉक करने नहीं जा पाते थे, अब आपके पास 1 घंटे का टाइम सुबह और 1 घंटे का शाम को है। ठीक है, आप कम्युनिटी बनाना चाहते हो ऑफ ऑल द women and men around, we can do that। आप अब अपनी ट्यूशन या कोचिंग शुरू करना चाहते हो छोटे छोटे बच्चों की,
देखो सब नर्सरी फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आप कोचिंग करना चाहते हो, अब आप वो शुरू करो, उनको सिखाओ, उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो उनके अपने बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, तो वो दादा दादी और नाना नानी का प्यार मिस करते हैं, मतलब वो वाली जो एक पैम्परिंग होती है ना। तो अगर हम ये कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा दोनों ऑफिस में हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, बट वो जो दादी या नानी का या दादाजी या नानी जी का प्यार है वो कौन देगा उनको, मतलब वो एक अलग विजडम और वो एक अलग तरीके से हैंडल होते हैं, दे विल फील सो कनेक्टेड टू द ओल्डर ग्रुप, द ओल्डर जनरेशन। सो दैट वे देयर आर zillion ways in which we can make ourselves, कोई स्किल कोई टैलेंट हो सकता है हम में, है ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। So इस तरह से make yourself useful till the last day of your life and that is what it is. So यही हमको इसमें समझाया हुआ है कि माइंड कभी भी रिटायर्ड नहीं होता है। So it's a new venture, new challenge, a new path, एक नया रास्ता, और it is the beginning, it is not the end. That's what we think, right? That सब कुछ end हो गया, वो अब बस रेस्ट करना है। No, it is the beginning of the fulfillment of a long dream जो आपको हमेशा से सपने में थी, उसकी बिगनिंग है। हो सकता है आपको हमेशा से बिजनेस करना था, नहीं कर पाए, नहीं उस तरह का सपोर्ट था, नहीं उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज लाइक, इट सेज दैट फर्स्ट पिक्चर में मत रहो कि इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड नाउ, और अब हम 90 इयर्स के हो गए, ठीक है। तो वो इस थॉट के कारण ही हम जल्दी प्री मैच्योरिटी एज होते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच पूनम फॉर रीडिंग। सो both Thank you so Shivani and much. Poonam have read after a while. Thank you so much, ma'am. So thank you so Thank much. you. Thank you. So yeah, that's about it. He graduated to a better job. ये हम कल पढ़ेंगे. Anyone wants to add or share? Can I say something, Deepti? मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहिए, प्लेटफॉर्म आप ही का बोल, है। ये YouTube पे बोल दो। हाँ बिल्कुल। I love you. हाँ थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। मैंने भी YouTube पे बोल दिया। आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। I don't know किसी और ने बोला, कलर इज लाइक बहुत प्यारा ऑरेंज लग रहा है। कलर। Yeah, अभी my मैं favorite. गेरुए वस्त्र पहन रही हूँ 77th वो भी इंडिपेंडेंस डे तक। नहीं, ये पूरी सीरीज मेरी बहुत फेवरेट है, अभी हो गई है। मतलब ये कलर इसी फॉन्ट के जितने कलर्स है ना, वो ऐसा वाले। है सुनैना कि आप ना यूथफुलनेस के रास्ते पे हैं, तो अब आपको ना मजेंटा, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज, इलेक्ट्रिक ब्लू, नहीं, ये वो सारे कलर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे में वो दूसरा रेडियंस आ रहा है ना, स्पिरिचुअल। अच्छा, बिसाइड्स दैट मैंने एक शेयर करना था, वो दीप्ति से इसलिए रिलेटेड है बिकॉज मैंने ये दीप्ति से सीखा था कि जब भी आप ट्रेवल करते हो, ये भी मैनिफेस्ट किया करो कि कोई हमें कोई बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए, जिससे हमारा ट्रेवल अच्छा हो जाए। इफ यू रिमेम्बर, लॉन्ग ट्रैवल। तो हाँ हाँ, तो अभी जब मैं आई तो मेरा ट्रेवल तो बहुत ही कंफर्टेबल था, और जैसे मैं बोलती हूँ ना, इन एवरी सिचुएशन द बेस्ट आउटकम्स कम्स टू मी। तो मैं ही बहुत लिखती हूँ, बोलती। तो हम 3 जन आए, तो मैं ही सिर्फ बिजनेस क्लास से, विनय और रूही नहीं आई। तो विनय बोलता है, तू हमारे लिए भी लिखा कि तू ही क्यों है। और पिछले 2 वर्ष से ऐसे हो रहा है, तो इस बार तो ये एफर्मेशन मिरर के आगे, मतलब हर वक्त आज तो वो मैनिफेस्ट मेरे लिए ही हुआ। चलिए, एक तो ये मेरा हो गया। एक ना मैं फिर सोचती रही कि मैंने ये भी लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी कम दीप्ति बोलती है, मतलब मिलता है अच्छा बोलने से ना, मतलब ऐसे क्योंकि तुम बार-बार आ रहे थे, तुम्हें ट्रेवल के टाइम पे बहुत लोग मिलते हैं। तो 2 फ्लाइट्स थी ना, तो हम लोग सो रहे थे, तो मैंने देखा साइड में किसी के ग्लासेस गिरे हुए थे। तो मैंने वो ग्लासेस, साथ में जो पैसेंजर थे वो उस वक्त सो रहे थे, और वो पैसेंजर ऐसे थे कि थोड़ी देर पहले ना उनको एक विमेन आई, वो हाय सर, मैंने आपको यहाँ देखा वहां देखा, कैन आई टेक अ सेल्फी। तो कोई मतलब कुछ थे, आई थॉट कि कोई सेल्फी ले रहा है तो कुछ होंगे, मन में मेरे बहुत आ रहा था मैं पूछूं कौन है, क्योंकि वो ना एक बुक से कॉन्टिन्यूसली फोन में नोट डाउन किए जा रहे थे, लंबा। मुझे लगा ऑथर है, तो वो और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, बट समहाउ आई कुडंट अप्रोच, और मैंने वो मैनिफेस्ट कर दिया, ये काश मेरी इनसे बात हो जाती। करते करते सो गई। तो जब मैं उठी मिडल ऑफ द, उसमें वो जो हमारा एक टाइम होता है ना, जब हम उठ जाते हैं 4-5 घंटे में, मेरी तो ग्लासेस गिरे हुए थे उनके, तो वेट की मैंने की, वो ग्लासेस भी वैसे विदाउट एनी ऊपर कोई कवरिंग, सिंपल ग्लासेस टूटने वाले।
तो घंटे बाद वो उठे तो मैंने बोला सर ये आपके ग्लासेस। ही सेड थैंक यू सो मच, इस तरह से। तो अभी आधा घंटा रह गया था फ्लाइट को मतलब लैंड होने में। तो मैंने बोला सर आर यू एन ऑथर? ही सेड नो। ओके, ही सेड व्हाई आर यू आस्किंग? आई सेड बिकॉज़ यू वर टेकिंग नोट्स फ्रॉम द बुक एंड आई आल्सो राइट बुक्स, सो इट जस्ट जनरेटेड क्यूरियोसिटी, यू नो। तो ही सेड आर यू एन ऑथर? आई सेड यस सर। तो उसने बोला आपने क्या लिखा है? तो मैंने अभी पर्पल काउच की बात की। तो ही सेड मैं आई एम वेरी professor, a big professor, and I'm going to Chicago to give a lecture on the LGBTQI community. So I said, really? He said, please tell me your book name. फिर उसके बाद मैं चुप थी एंड दीप्ति आप बिलीव नहीं करोगे, वही फिर मैं सेलिब्रिटी बन गई। He's like, प्लीज मुझे अपना नंबर दो, मैं इतना खुश हूँ आपसे मिलकर। वो रिवर्स हो गया जो मैं उनका देख रही थी। He said, मैं पिक्चर ले सकता हूँ आपके साथ? तो मैं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया, मतलब सब उल्टा हो गया जो मैंने उनके साथ किसी और को करते हुए देखा। एंड इट वाज जस्ट लाइक 15 मिनट भी मतलब वो रह गए थे लैंड होने के लिए। फिर विनय और रूही को इकोनॉमी से आने में टाइम लग रहा था, तो मैं खड़ी वेट कर रही थी। ही सेड आई विल वेट फॉर योर हस्बैंड। वो मेरे साथ खड़े रहे जब तक मेरे मतलब मेरी फैमिली आई नहीं, एंड अब मेरा नंबर लेके गए और उन्होंने मेरी बुक बाय भी कर ली। ही सेड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर बुक टू माय शिकागो लेक्चर एज वेल। मैं मुझे मतलब अच्छा लगा कि आपने भी ऐसे देखा है। तो दैट डे मतलब मुझे उस मोमेंट पे सिर्फ वो दीप्ति की और मैं वेट कर रही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। मैं अभी सोच के इतना आई हूँ। सो ये मेरी शेयरिंग थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, दिल से करना चाहिए। नो दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो पावरफुल। और मुझे सबसे अच्छी चीज तुम्हारे एक्सपीरियंस में सुनैना ये लगी कि सेल्फ लव इतना ज्यादा तुम में आ गया है, क्योंकि यही सुनैना अगर 1 साल पहले होती ना तो ये अपनी बेटी को बिजनेस क्लास की सीट पे बैठाती। हाँ, पक्का। नॉर्मली एक माँ ऐसे 100%, ही सोचती है, एक माँ ऐसे 100%। सोचती है, क्योंकि हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करा के बच्चों के लिए करते हैं। So, but it says to value yourself. You are number one in your life. But you know, Vinay was like कि ये तू हमारे लिए क्यों नहीं लिखती है? मैंने बोला अपने लिए खुद लिखो, मैं लिखती हूँ तो इसलिए मुझे मिलता है। बट दिस मुझे मैं वो ये विजुलाइज दीप्ति कर रही हूँ कि बिल्कुल कैसे तुम बिजनेस क्लास से उठ के उन दोनों को बाय बोल के तुम इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की तरफ गई, यू नो, बिकॉज अरे सुनैना वो वन लाइन दिन दैट वो अपनी सेपरेट बेटी को होती बोलती, है। रूही आप जाके बैठ जाओ बिजनेस क्लास में, हमको एक सीट वहां पे मिल गई है। नहीं, एक सीट खाली थी और मैंने तब ये ऐसे मन में विजुलाइज किया कि मे बी शायद वो बोल दे रूही को कि तुम आ जाओ अपग्रेड कर देते, बट वो इतना मेरा वो जादू चला नहीं ऑनेस्टली। तो मुझे लगा कि चलो लेट रूही लर्न अ लेसन, मे बी उसको वहां बैठने से कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं सही है। बहुत मस्ती से सो के आई हूँ। बट या बहुत ही जॉयफुल जर्नी थी एंड स्टाफ वाज सो गुड एंड द पेबैक वाज दैट कि रूही जब मुझे लेने आई तो वो स्टाफ वाज टेलिंग रूही, जो मुझे रूही ने घर आके बोला कि क्या करके आए हो वहां पे, अपना ग्रेटिट्यूड वहां भी कुछ कराए हो क्या? मैंने बोला नहीं, क्या हुआ? बोलते सब लोग मुझे योर मॉम इज अडोरेबल, योर मॉम इज सच अ डार्लिंग, योर मॉम इज दिस। मैंने बोला तुझे कब बोला? मुझे एक ने भी नहीं बोला। बोलते जब आप चले गए थे तब, जब मैं आपका सामान लेके मैं पीछे आ रही थी, मेरे को और वो लगा, मैंने कहा बच्चा मेरा सोच रहा होगा। बट या इट वाज अ थॉरो गुड जर्नी। घर का मैंने कल दिखाई दिया था, उसमें भी मेरे को ना रिवर देखते ही ऑनेस्टली मैं 4 दिन बाद गई तो विनय मुझे बोलते तेरी जगह दीप्ति होती ना, उसने सामान रखना था, बोलना था पहले तो मैं रिवर पे जा रही हूँ, तुम आके तुम्हारा सामान सेट करूंगी। मैंने बोला हाँ वो दीप्ति है ना, मैंने 4 दिन लगाए क्योंकि मुझे सामान सेट करना था। तो या इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। Beautiful. Thank you. एंड Lovely sharing for all those लास्ट people who ईयर think that, या yeah, I mean, like, this is really amazing, incredible. May you हमने always लास्ट travel ईयर in यही business से शुरू class with किया the था, इफ यू family. रिमेम्बर, लाइक 1 जनवरी 2022 कनाडा से ही मैंने आपको ज्वाइन किया था हाँ, व्हेन आई right. वाज इन कनाडा। Yeah, या yeah. सो इट्स लाइक वापस फिर से वही हो गया मेरा। हाँ. You and Rashmi एनीवेज should go out for an outing this weekend. या पक्का पक्का अभी, I हाँ don't know अभी तो whether वो Minnie बिजी is चल there रही in है। Canada only right now or where. I'm like, she's in अच्छा Calgary or she's in Toronto. वो अच्छा ओके। हाँ flip करती रहती है. या बट शी नोज आई हैव रीच्ड, उसको बता दिया था हाँ, go मैंने। out for weekend, both of you. नहीं नहीं जाएंगे, रश्मि अगर सुन रही है तो पक्का, Yeah. बाकी बहनें तो जाएंगे। अभी settle हो जाओ थोड़ा सा. I'm sure that you are, like you're still settling into the new house there.
या And बट अब thank you टाइम so अब much. टाइम नहीं लगता। हाँ Yeah. नहीं, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। No, no, lovely, lovely सबको sharing. And I really want all your sharings to come on the YouTube. Then many people get inspired. मुझे सबसे अच्छा तुम्हारा self love लगा आज। रूही सुन रही है? अकेले कितनी इकोनॉमी आगे से चली गई। बेटी को और पति को छोड़ के जाके बिजनेस क्लास। अमेजिंग। सॉरी गाइस, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ ना, लव है ये प्लीज। सेल्फिशनेस नहीं होती है। दैट्स व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोगों को ना हाँ। सैक्रिफाइस करने की आदत पड़ गई है और वो आदत हो हमारा जाती है। कंफर्ट जोन हो गया है। अब हम नहीं सोचते कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। You know, this we have Yeah. to realize. Yes, everybody else is very, very important to us. The most important person in your life is like I, me, myself. कहते हैं ना, 3 most important people in your life is I, me, गर्ल्स, myself. मेरी कंडीशन यही थी कनाडा जाने की। अगर विनय मुझे मेरा मन नहीं था, विनय सेड मैं जाना है, तो मैंने बोला मेरी एक कंडीशन है, मुझे तो बिजनेस से ही जाना है, तुम जैसे मर्जी जाओ। तो जिद करने से भी मिल जाता है। हाँ, प्रिया जिद करने देखिए, से भी सुनैना मिल ऐसी जाता भी है। यूनिवर्स से मिलता है। जिद कर लो, वो जिद ही नहीं करनी पड़ती, वो वैसे ही सुन लेते हैं। बस फ्रीक्वेंसी में हाई में रहना पड़ता है। या चलिए, Yeah. थैंक यू So सो yeah, मच। thank you so much. Thank you. Bye Thank bye. you Then so we'll much, see ma'am. you all Thank you. tomorrow morning. Bye bye. Beautiful sharing, Sunena. Yeah. Bye. Thank you, ma'am. Thank मजा आ you for गया। sharing. Uh, Thank you, ma'am. bye bye. Thank you, bye bye।